Hey viewers watching the Savera and I'm Vidhi Joshi. The Southeast District of Delhi Police has successfully busted an international digital fraud and extortion racket, asserting 10 individuals including the alleged mastermind of the operation. The syndicate is believed to have cheated victims of over rupees 50 crore by impersonating law enforcement officials. The arrests were made during coordinated raids across 7 states, that is Delhi, Maharashtra, Kerala, Odisha, Punjab, UP and Haryana as part of an investigation that began in southeast Delhi. One of the accused was apprehended at Mumbai airport while attempting to flee to Dubai. The group operated a sophisticated digital arrest scam, threatening victims through video calls while posing as police officers. During these calls, the fraudsters falsely claimed that the victims' Aadhaar and mobile numbers were linked to the serious criminal cases and coerced them into transferring money to avoid arrest. The scam came to light following a complaint on December 7 by a resident of Shaheen Bagh who alleged that he had been cheated of rupees 99,888 after receiving threatening video calls from fraudsters impersonating Karnataka police. Following the complaint, an FIR was registered under Section 318, subsection 4 of the BNS for cheating, and a detailed investigation was launched. Police investigations revealed that the accused were part of an interstate and cross-border network that involved mule bank accounts, illegal SIM activation, and social media authentication using multiple devices. Financial analysis and technical surveillance indicated that over rupees 50 crore were linked to at least 66 complaints registered against the accused on the National Cybercrime Reporting Portal. 2 members of the syndicate remain at large. The arrested individuals played different roles within the syndicate, including procuring mule accounts, handling debit cards, activating illegal SIM cards, and routing the proceeds of crime. Several of them have a history of cyber fraud, pointing to a well-established criminal network. During the operation, police seized 10 mobile phones, multiple debit and credit cards, digital evidence including WhatsApp chats and voice notes, and a car allegedly used by the accused. The Delhi Police swift action highlights the growing threat of a digital fraud and the need for vigilance against cybercrime, particularly scams that exploit fear and impersonation to extort money from unsuspecting victims. ये जो सिम प्रोवाइड करते थे, ये जो फेक आधार कार्ड है उनकी देते थे, या जो जेन्युइन कस्टमर आते हैं वो अपना आधार कार्ड जमा करते हैं, उन्हें एक सिम लेनी होती है, तो बाद में इनके पास इनकी फोटोकॉपी होती है, उस पे ये और ज़्यादा क्या बोलते हैं दूसरे के नाम पे सिम दे देते हैं। क्या पंजाब से भी कोई कनेक्शन है? इसमें पंजाब में हमारी टीम गई थी क्या? नहीं, इसमें पंजाब में हमारी टीम पंजाब में गई थी क्या? अच्छा, एक अकाउंट पंजाब में खुला हुआ है, पंजाब का अकाउंट खुला हुआ। कितने टाइम से सर ये कर रहे थे? ये जो दोनों हैं भाई, ये तो पिछले 3 साल से अधिक से कर रहे हैं। इनके विरुद्ध दिल्ली में भी एक मुकदमा है जिसमें बाई नेम वांटेड है। इसके अलावा इनके विरुद्ध, दोनों भाइयों के विरुद्ध केरला में मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमा 112 का है, जिसका मतलब होता है कि ये संगठित अपराध में लिप्त हैं और ये संगठित तरीके से अपराध कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में इनके विरुद्ध NBW भी केरला पुलिस ने ले रखे। सर, जैसे केसेस आ रहे हैं उसमें तो साफ पता लगता है सिम जिसका मतलब लेना एक बड़ा सिंपल टास्क होता है, क्योंकि सिम आप देख, आपको भी पता होगा कि सिम होते हैं या थंबप्रिंट या OTP आता है या आपको अपनी पिक्चर क्लिक करनी पड़ती है तो आपको मिलते हैं। तो ये कैसे सिम इतनी आराम से अवेलेबल करा लेते हैं? मैडम, इसी बिकॉज जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी दूर दराज का इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, इस पे हमारी और आगे का अन्वेषण जारी है कि किस तरीके से ये काम कार्य कर रहे थे। तो इस विषय में मैं सभी जो आम नागरिक हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई भी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या किसी भी राज्य की पुलिस हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो या और कोई एजेंसी हो, ये कभी भी किसी को फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये कभी भी किसी को रिमोटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी किसी को इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आम नागरिक को इस तरीके की अगर कोई वारदात उनके साथ होती है तो किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर से कॉल आई है उस नंबर को ब्लॉक करें, और जो लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या तो वहाँ जाके अपनी बात बताएं या फिर वो 1930 पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
तो पर्टिकुलर टारगेट का कुछ नहीं पता लग सकता किनको टारगेट करना नहीं, वो रैंडम फ़ोन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे जो हमने ऑपरेशन किया है, इसमें मैं मुंबई पुलिस और जो FRRO मुंबई हैं उनको, केरला पुलिस को और अन्य राज्य की पुलिसों को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली सपोर्ट किया, जिसके कारण कुछ अपराधियों को हम पकड़ पाए। इनमें से एक अपराधी बॉम्बे से दुबई की फ़्लाइट में बैठ चुका था। इमीडिएटली बॉम्बे FRRO मैडम को कांटेक्ट किया गया। उन्होंने हमारी ईमेल पर रिक्वेस्ट लेके अपने इमिग्रेशन के ऑफिसर्स को उसको फ़्लाइट के अंदर से पकड़ के वापस लेके आए हैं। फिर हमारी दिल्ली पुलिस की टीम उसे पकड़ के लेके आई है। इसी प्रकार से 2 अपराधियों को जो ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने बहुत ही टेक्निकल सर्विलेंस करके बीच रास्ते में ट्रेन पे अपने पुलिस वालों को चढ़ा के फिर उन्हें ढूंढ के हमने प्लेटफॉर्म से उन्हें अरेस्ट किया। थैंक यू। देखिए, हमारे केस में लगभग 1 लाख रुपए है, 99,888 है, लेकिन इन 6 आदमियों के विरुद्ध जो 66 कंप्लेंट पाई गई हैं NCRP पे, उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड इनके द्वारा पाया गया है। सर, आपने कुछ अमाउंट फ्रीज भी कराया? इसमें जो हमारे अकाउंट आते जा रहे हैं, सभी अकाउंट हम NCRP पोर्टल पे, समन्वय पोर्टल पे अपडेट करके उन पर फ्रीज कराते जा रहे हैं।